Yeah, we are live on Facebook. Yeah, it's coming. Gee, let's start. We're live. Yeah, we are live. Vandana ma'am, you can start. Okay. Good afternoon. Thank you for coming and being with us at this important juncture. There are a lot of people who have been asking questions related to radiation and how it's going to affect COVID. So we requested Dr. Srivastav, who's the head of radiation in Apollo Hospital, to be with us and to talk about us. Dr. Srivastav has a vast range of experience from Tata Memorial Hospital and at Apollo, and of course his other academic qualifications. So I'm not listing out all of them because it will be a long, long list. So Dr. Srivastav, most welcome. Please. Thank you, Vandana ji. Uh, I think for when the turn of this year has come in 2020, we have been talking about several things. And now for last at least 4 or 5 months, the major issue which the people are talking either on the TV media or maybe personally is the COVID or the coronavirus incidents which is happening. So this coronavirus pandemic is really changing our life, and so many things are happening. And in coming years of time, we are going to see how the things are changing in our lifestyle. And also when I'm talking about the radiation therapy for cancer patients, especially, that is also going to change over the period of time. We all know that on 31st December 2019, the WHO from China, mainly from the Wuhan WHO office, has declared that the coronavirus has inflicted so many people in China. And over the period of time, we have seen that this has become an issue all over the world. The major thing with the coronavirus, which is a novel coronavirus, nowadays it has been named as a COVID-19 by the WHO, where you can see the major symptoms which are there are the cough, sneezing, but the another issue which was quite frightening for most of us was the lesion in the lung, and people have got a respiratory difficulty. So that is the important aspect in this virus. And obviously our life has changed. For a long period of time we have lockdown, and also when we are seeing in the radiation therapy, there are changes which is happening. Now, when we see the what is happening in the scenario, you can see that the in Wuhan, somewhere here you can see the coronavirus has inflicted so many people, and that was declared on 31st December. But when we see in India, it took almost 1 month when the first person who was a student in Wuhan came to Kerala, and she has shown the symptoms of the coronavirus. She was treated and she was quarantined and she became all right. And after that, we have seen that a lot of things have happened over the period of time. So if you look at the historically, 31st December was the sun, therefore it is known as the COVID-19. India, the first case was seen on the 30th January 2020. By March, you can see it here, very long period of time. हमारे पास करीब 22 केसेस ही थे, उसमें से जो 12 मार्च को थी वो एक डेथ हुई थी. बट उसके बाद अगर हम देखते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ए वेरी लॉन्ग पीरियड, वी हैव गॉट क्रॉस द 1 lakh total number of cases. Nearly 50,000 cases have been recovered,
Death has been seen in 3,500 cases. So you can see the death rate is 3.09. So it's almost 3% death rate, but it has caused a lot of havoc among all of us. When we talk of Indian scenario, the largest number of people who have been affected by the coronavirus is in Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai, Pune, and the Indore. And we have to see, and we have to do something so that these number of cases has to come down. There are no cases in Sikkim and Lakshadweep, and currently the Indian government has declared a 0 active cases in Goa, Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, and Tripura. So it's a happy situation in one way, that in some part there are very few cases, while there are something problem which we are seeing in some of the city, and we have to be prepared for that. Since we are in Mumbai, so we have to be really careful about this and should know that what is happening and what we need to do. If we see the virus's pandemic, in a recent time, when we see in 2002, we saw in China, the SARS virus was there, which has killed large number of people. Then it went to the other countries also. 2009, from USA to originate, especially from the New Jersey, H1N1 influenza, we generally call it as swine flu. In 2012, it comes as a MERS, or the Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. It originated from Saudi Arabia in 2019 from China. And these viruses have been responsible for a lot of deaths and a lot of agony with the public. When we look at the coronavirus, it is a SARS virus, so it is basically a severe acute respiratory syndrome. तो ये लंग्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, काफ़ी लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम होती है. अगर हम इसका 3D पिक्चर देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है. एक चीज़ जो हमारे लिए समझने वाली बात है कि जो वायरस होते हैं वो खुद एक तरह से इनएक्टिव होते हैं, वो खुद अपने आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं. अगर उनको बाहर छोड़ भी दिया जाए तो कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं. तो इनको क्या ज़रूरत है, ये हमारे शरीर में किसी न किसी शरीर की कोशिकाओं या सेल्स में जाने की ज़रूरत है इनको. तो इसके बारे में समझा जाता है कि ये चमगादड़ में सबसे पहले रही थी. फिर कुछ लोग तरह तरह के जानवरों को खाते थे तो ये आदमी में हुई. फिर धीरे धीरे ये आदमियों से आदमियों पहुँचती है. और ये समझा जाता था पहले ये आदमी में अगर हो भी गया तो ये आदमी से आदमी में नहीं होगा, लेकिन ये तो अप्रूव हो गया है कि ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है. और दूसरी तकलीफ ये है कि ये कुछ परसेंटेज में, जैसे कि करीब करीब 3 से 4% लोगों में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है. होता क्या है, कोई भी वायरस, जैसा मैंने कहा कि अगर वायरस अकेला बैठा हुआ है तो कुछ काम नहीं करता. अगर ये बाहर भी है तो कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. लेकिन अगर ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो ये हमारी एक कोशिका है, अगर आप देखें ये शरीर के अंदर घुसता है और फिर ये अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करता है. और यहाँ पे ये डिवाइड होकर के ये एक होता है, ये बहुत सारे एक साथ निकलते हैं और इस तरह से ये पूरे सेल को डैमेज करते हैं. तो यही चीज़ होती है हमारे शरीर में कि अगर ये वायरस हमारे शरीर में किसी तरह से पहुँच गया तो ये काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचा सकता है. और हमारे जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक है, उनमें नुकसान पहुंचाता है. और इनके कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि आप अगर यहाँ देखते हैं तो सबसे जो साधारण जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो होते हैं कफ, यानी खांसी हो रही होती है और निमोनिया जैसा होने लगता है थोड़े समय बाद. अभी जो देखा गया है कि इसमें बुखार होता है. और अभी रिसेंटली, पहले ये डायरिया नहीं देखा गया था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स में जब डायरिया के सिम्टम्स भी होते हैं तो वो भी कोरोना वायरस के हो सकते हैं. माइल्जिया यानी जनरलाइज वीकनेस, जो कि कमजोरी जैसी महसूस होती है, वो भी देखा गया है बहुत सारे मरीजों में. पर सबसे तकलीफ वाली जो बात होती है वो है हमारे न्यूमोनिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं. और इसी के कारण ज़्यादातर जो मृत्यु हुई है लोगों की वो यहीं पर हुई है. और साथ में फिर ये मल्टी ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाते हैं, किडनी फेल होती है और ये सब चीज़ें इसके बाद होती हैं. ये समझने वाली बात है. तो इस तरह से ये वायरस आगे फैलता है. अगर हम देखें कि हमारे आसपास के देशों में क्या हुआ है, ये हमने खास तौर पे लिया गया था कि कुछ
एशियन देशों में। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि चाइना में थे। अभी हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ करीब 1 लाख से ऊपर है और करीब इससे आधे केस ठीक भी हो चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि इसके अंदर जो सबसे डेथ रेट या जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 3 से 4% ही होते हैं। ये हम चाइना में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं। कुछ एक ऐसे देश हैं जहाँ पर कि बहुत कम मृत्यु हुई लोगों की। इसमें एक अगर आप देखते हैं तो सिंगापुर भी है, जिसमें कि शुरू में केसेस बाकी हुए, लेकिन आप डेथ देखेंगे तो बहुत कम यहाँ पर डेथ हुई। श्रीलंका ने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है, थाईलैंड ने कंट्रोल किया है, तो कुछ एक जगह काफ़ी कंट्रोल किया गया है। बट इसमें इन सबके जो जन सामान्य है, जो जनता है, उनकी भागीदारी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कई देश हैं जहाँ, जैसे कोरिया है, शुरू में काफ़ी हुए, उसके बाद में ठीक होना भी हुआ और बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए टेस्ट करना जरूरी है, देखना जरूरी है कि क्या इनके केसेस हैं और किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है। अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो ये काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया होता, शुरू में बहुत कम केसेस थे। अगर हम टोटल कंफर्म केस, ये एक्टिव केस और अगर हम रिकवरी और डेथ देखते हैं तो इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो देखें लास्ट में जो हुए थे आखिर के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो शुरू में इनकी बढ़त कम थी और यही चीज़ हम देख सकते हैं कि कैसे नए केसेस बढ़ते गए हैं और इनमें रिकवरीज है और डेथ भी हम देख रहे हैं। तो ये एक जो डेथ है ये थोड़ी सी कंसर्न है हम लोगों के लिए कि ये कितने कम हो उतना ठीक रहेगा और इनको संभाला जा सकता है इसमें। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना वायरस कोई बहुत नया नहीं है, पहले भी आया हुआ है, लेकिन इसने पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में कहीं ना कहीं इसका रूप देखने को मिल रहा है। और इसलिए जो हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक जर्नल्स होती हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट हुआ है इन सब का। कोई भी चीज़ कितने महत्व की है ये देखने के लिए ज़रूरी होता है कि किस तरह से पब्लिकेशन आ रहे हैं। पिछले 4-5 महीने में हम देखते हैं तो करीब 650 के आसपास जो है साइंटिफिक पेपर आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आए हैं, बाकी देशों से भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है इन पेपर्स में। इसका मतलब है कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल वगैरह में जिस तरह से इनका असर हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोगों में इसकी जागृति है और ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और यही एक बड़ी संभावना है कि कुछ ना कुछ इसके लिए किया जा सकता है और काफ़ी कुछ ठीक होंगे। अगर हम, ये तो सारे साइंटिफिक पेपर हैं जो कि हम देखते हैं सभी तरह की बीमारियों और कोरोना वायरस से रिलेटेड है। अगर हम रेडिएशन थेरेपी से देखें तो फिर भी काफ़ी मात्रा में करीब 100 पेपर ऐसे आए हैं जो बताते हैं कि रेडिएशन थेरेपी के साथ में क्या करना चाहिए जब कोरोना वायरस, या तो जिनकी शक होता है कि कोरोना वायरस हो सकता है या जिनको कोरोना वायरस हो गया है उनमें रेडिएशन में किया गया। और वंदना जी ने जो टॉपिक के लिए कहा है वी केयर के थ्रू, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बड़ी महत्व वाली चीज़ है कि जो कैंसर के मरीज हो रहे हैं उनमें कईयों में रेडिएशन थेरेपी देने की आवश्यकता है, उसमें क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है कि क्या करना चाहिए इनका, जब भी कोई कैंसर पेशेंट्स होता है तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को क्या क्या मरीज को करना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने महत्व वाली चीज़ें दे रहे हैं कि जब कभी कैंसर मरीज के साथ में अगर कोरोना वायरस की शक हो या जिस देश में या जिस शहर में कोरोना वायरस और कैंसर के मरीज हैं उनके साथ क्या किस तरह से डील करना चाहिए। और कई बार शुरू में तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा है क्योंकि किसी को भी इसके बारे में अधिक पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले सिम्टम्स बहुत कम पता थे, लेकिन धीरे धीरे अभी कई तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो मरीजों में। कई मरीज हैं जिनको कि खांसी भी नहीं है, बुखार नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, उनमें भी जो है कई बार कोरोना वायरस देखा गया है। तो ये चीज़ हो रही है इनके साथ में। बट सौभाग्य वाली बात यह है कि अगर इनको प्रॉपरली देखा जाए, सही समय पर उस पर ध्यान दिया जाए तो ठीक होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। कई रिसर्च प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी जिसमें कुछ एक पूरे हो गए जो कि थोड़े से पेशेंट्स के साथ में वो उनके पब्लिकेशन हो रहे हैं और बहुत सारी जगह रिसर्च चल रही है। अभी जैसे बात हो रही थी कि नई नई दवाइयाँ आ रही हैं
पहले ये कहा गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है उसको दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। फिर कुछ और दवाइयाँ आई, कुछ एंटीवायरस ट्रीटमेंट आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में चल रहा है। बट दूसरी बात वो भी हो रही है कि भ्रांतियां भी काफ़ी हो रही हैं। लोग वाग जैसे व्हाट्सएप या कुछ चीज़ों पे कुछ तरह के पेपर या कुछ तरह की चीज़ें छापते हैं, कई बार वो साइंटिफिक नहीं होती है, तो कई अनसाइंटिफिक भी होते हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ को हम बिगाड़ ना लें। तो ये आवश्यक है, जो भी चीज़ पढ़ा जाए उसमें बेहतर है किसी न किसी डॉक्टर की या चिकित्सक की सलाह ली जाए कि अगर कुछ नई चीज़ आ रही है तो कितना अच्छा होगा। भारत सरकार की तरफ से भी कई चीज़ें आ रही हैं, वो एलोपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी आ रही हैं। तो उनको ऐसी चीज़ों को ही देखना चाहिए जिसको कि कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, या कहीं पर इसका ऑथेंटिक पेपर है जो कि ये बताता है कि इससे फ़ायदा होगा। बट फाइनली हमको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, देखें कौन कौन सी स्टडीज़ के रिजल्ट अच्छे आते हैं। एंड मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा आएगा जो कि इसके लिए प्रूव हो जाएगा। जैसे कि स्वाइन फ्लू के बारे में शुरू में कुछ नहीं पता था, फिर लेकिन दवाइयाँ आई और आज की तारीख में आज किसी को डर नहीं लगता है कि स्वाइन फ्लू में इतना चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ी सी बात जो कि कोरोना वायरस की। अब इसके साथ में रेडियोथेरेपी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोसेस क्या होती है और इन सब के लिए क्या क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है। और हर रोगी, हर को साथ में जो भी केयर गिवर है, सोशल वर्कर है, सबको भी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे स्टाफ का भी बचाव करना है, मरीजों का भी बचाव करना है। जो भी केयर गिवर है आसपास है, चाहे वो नर्सेस हो, सोशल वर्कर हो, वार्ड बॉयज़ हो, सफाई कर्मचारी, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो मरीज सबसे पहले काउंटर पे आता है जहाँ पर कि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, वो देखते हैं कि इनको कहाँ रेडियोथेरेपी के लिए भेजा गया है। इसके बाद में जहाँ सामान्यतः नर्स जो है वो देखती है कि मरीज की हालत ठीक है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसमें कोई और रोग तो नहीं है। जब ये सब चीज़ें, इनका बेसिक हेल्थ स्टेटस देखने के बाद डॉक्टर से फिर बात होती है। डॉक्टर उनके बारे में पूरा देखते हैं कि कहाँ बीमारी है, क्या करना चाहिए, और इसके अनुसार फिर आगे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में जैसे पता होता है कि रेडिएशन लगना है, वो साधारणतः एक नहीं, वो कई बार होता है। And what happens after the doctor has examined the patient, they ask for certain appointments, and these appointments are for the investigation, कोई चीज़ों की जांच करने की आवश्यकता होती है, और मे बी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन थेरेपी। अब ये मरीज कई बार ऐसे होते हैं जो कि सीधे रेडिएशन के लिए आते हैं, कभी कभी इनके ऑपरेशन हो चुके होते हैं उसके बाद आते हैं, कई बार कीमोथेरेपी के साथ देते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब एक डॉक्टर एग्जामिन कर लेता है इनको, उसके बाद एक चीज़ कहलाती है जिसको कि हम कहते हैं एमडीटी या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। एक मरीज को देखने के बाद फिर सारी विधाओं वाले, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सभी एक साथ बैठते हैं, पैथोलॉजिस्ट और रेडियो डायग्नोस्टिशियन के साथ में, और उस मरीज का निश्चित करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए इनको रेडिएशन देना है तो फिर इनको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है। एंड ऑलवेज व्हेन वी स्टार्ट द रेडिएशन, we invariably before that we do the CT scan, or we call it a CT simulation. So once the CT simulation is done, so that we can identify where is the tumor and where are the normal structure. And the most important thing comes, all these scans which have been done on the CT scan, they go for a planning. So with the medical physicists are there, they will take all the scans. On that, the radiation oncologist will find where is the tumor and where the normal structure, and then the medical physicist will plan for giving the radiation, how the radiation beam should enter into the body to get the maximum dose to the tumor and minimum dose to the normal structure. Once that is done, which is satisfactory dose distribution, then the patient goes for the treatment. And when the treatment is going on, you can see this is the linear accelerator, and the various accessories are there. Linear accelerator, which is for giving the accurate and very precise form of radiation therapy. And then once it is done, the technician will monitor from outside for giving radiation. This is for the first time, and the process which comes from here to here
इज रिपीटेड एवरी डे। जैसे कि रेडिएशन अधिकांशतः कई बार दिया जाता है, तो जब हम रेडिएशन देते हैं तो ये वाली प्रोसेस जहाँ लीनियर एक्सीलरेटर पे और फिर ये मॉनिटर करना, ये रोज होती है। ये अभी तक जो ज़्यादातर देते थे हम लोग, वो करीब 30 से 35 बार रेडिएशन देते, 30 से 35 दिन तक रेडिएशन देते थे। ये रोज प्रोसेस चलती रहती थी और इस दौरान मरीज को एवेल्युएट किया जाता था, देखा जाता था, कोई भी रिएक्शन हो उस हिसाब से दवा दी जाती थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज की तारीख में जब कोविड का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप फ्रॉम द बिगिनिंग टू द नर्सेस टू द डॉक्टर्स टू द टीचिंग फिजिशियन, इन सबको हम लोग जो है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये सब देना आवश्यक होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथ धोना और स्टरलाइजेशन के साथ में रखना। पेशेंट को भी ध्यान रखना है कि किसी और का इन्फेक्शन उनको ना हो जाए। ये जरूरी होता है इन दिस प्रोसेस में कि इस तरह से ध्यान दिया जाए। कई बार मरीजों को लगता है कि कई चीज़ें ज़्यादा ही की जा रही है, लेकिन ये आवश्यक है जिससे कि सभी लोग इसके साथ में बचाव रख सकते हैं। अभी जब पिछले दिनों से जब कैंसर हो रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हर बार यही होता है कि जैसे अगर ऑपरेशन होता है तो एक बार में हो जाता है, कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो एक बार दिया उसके बाद लंबा गैप हो जाता है, जबकि रेडिएशन में होता है कि वो एक बार शुरू हो जाता है, देन इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग फॉर से 5 to 6 वीक्स। एंड इसके पहले भी, कोरोना वायरस होने के पहले ही बहुत दिनों से ये स्टडी नहीं है कई जगह कि क्या हम ये समय कम कर सकते हैं। और कुछ एक बीमारी में हमको पता है, जैसे कि एक प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में काफ़ी लंबी स्टडी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मरीजों के ऊपर ये ट्राई किया गया है कि जहां हम पहले 6 वीक या 5 वीक का रेडिएशन देते थे, इनको हम कम कर सकते हैं। शायद हम इसको 3 या 4 वीक में कर सकते, 4 हफ्ते में कर सकते हैं। और लाइक इन प्रोस्टेट पीपल आर इवन थिंकिंग इफ यू कैन डू इट विद इन 1 वीक टाइम। सो ये चीज़ें हैं। और प्रोस्टेट में हो चाहे ब्रेस्ट में हो, जिसमें कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो ये चीज़ों को देख करके आज की तारीख में जितने भी मरीज यहाँ देखे जाते हैं, उनको डॉक्टर जो है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है, उनको 3 भागों में बांटते हैं कि हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। और ये मरीजों के साथ में जो भी रोगी आते हैं उनके साथ में भी डिस्कस किया जाता है कि पहले हम समझ लिए उसी बीमारी में हम 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम उसको 3 या 4 हफ्ते में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो कई बार मरीजों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये जो आप चेंज कर रहे हैं या आपने हमारा कम समय में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए कहीं ऐसा तो नहीं नुकसानदायक होगा। लेकिन आज की तारीख में जो भी किया जाता है उसका एविडेंस बेस होता है। कहीं ना कहीं ये स्टडी होती है जो कि बताती है कि हाँ, ऐसा करने से मरीज को नुकसान नहीं होगा। तो ये जो हम हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी में पेशेंट रखते हैं, यानी हाई प्रायोरिटी वो है जिसको रेडिएशन देना बहुत ज़रूरी है, अगर ना दिया तो ये नुकसान हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मरीज को इससे नुकसान हो। ऐसे केसेस में जो है रेडिएशन देना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ करते हुए भी यहाँ दिया जाता है। मीडियम प्रायोरिटी ये है कि जिसमें कि हम कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं और फिर उसके बाद रेडिएशन दे सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा पेशेंट के ठीक होने में। तो जैसे कि एक प्रोस्टेट कैंसर होता है कि उसको एक हार्मोन दे सकते हैं, जिससे कि हार्मोन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और 6 हफ्ते या 7 हफ्ते बाद हम उसका रेडिएशन दे सकते हैं। तब तक संभावना है कि कोविड की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और हम इनको ले सकते हैं। और बहुत लो प्रायोरिटी वो होती है जिसमें कि ये हमेशा डिबेट चलता रहा है कि क्या इसको खाली रेडिएशन देने से फ़ायदा है या हम इसको कुछ और तरह का दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि सिर्फ कीमोथेरेपी दें। तो ऐसी चीज़ों में ये लो प्रायोरिटी में आते हैं। इनमें मरीजों को पहले अगर मान लीजिए है और अगर कोई दूसरा तरह का इलाज संभव है तो पहले वो करते हैं। अगर संभावना है कि उससे ठीक हो जाए, अगर ना हुआ तो फिर ले सकते हैं। तो यानी कि इस तरह से कोई भी मरीज को जब हम देखते हैं तो इन प्रायोरिटी में लेते हैं। तो मरीज को ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आजकल कोरोना हो रहा है। इसमें जरूर कोई ना कोई एक साइंटिफिक बेसिस होता है जो कि मरीजों को समझाया जाता है। इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो हाँ,
कि एक जनरल प्रिंसिपल जो रेडिएशन में जो अप्लाई किया जाता है, कोई भी मरीज जब आते हैं तो पहला है कि क्या हम इमरजेंसी ना हो तो इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जैसा मैंने कहा कि जिसमें कि नुकसान नहीं है और डिले कर सकते हैं, ऐसे केसेस में डिले कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में किया जाता है कि इनको कोई दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा होता है और फिर वो बाद में उनको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कंफर्म केसेस हैं कोविड के, जिसका कि मैं आपको इसके बाद में एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा, कि कहा गया कि अगर मान लीजिए कोविड भी है और इसको कैंसर भी है तो क्या तकलीफ हो सकती है ज़्यादा। और एक पेपर है जो कि इसमें बताया गया होता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ही बताऊंगा। तो इनमें जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा हम वेट करते हैं जबकि कुछ दिनों के लिए, और फिर इनका दोबारा कोविड करते हैं। कोविड का हमको पता है कि काफ़ी दिनों में, काफ़ी लोगों में 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करने के बाद ये नेगेटिव हो जाते हैं और फिर इनका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि कोविड होने से ज़रूरी है कि इनको कैसे संभाला जाए, नहीं तो कई बार बहुत हो सकती है और ये मरीज भी दूसरे मरीज को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं इसमें। और जो का ट्रीटमेंट चल रहा है और उनका कभी मान लीजिए वो कोविड पॉजिटिव होता है, उनको सिम्टम्स होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं डिपेंडिंग, जैसा मैंने आपसे कहा पहले कि अगर मान लीजिए बहुत ही ज़रूरी नहीं है तो उनको वेट कराया जा सकता है और इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो मरीज का। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जिसके के कारण मरीज को नुकसान हुआ है, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं और करते हैं इसके केसेस में कि इनको एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। साधारणतः इनको दिन के आखिर में ही ट्रीटमेंट देते हैं और पूरी मशीन और पूरे हिस्से को सैनिटाइज करके दूसरे दिन के लिए तैयार करते हैं। तो जहाँ कहीं आवश्यक होता है तो वैसा कर सकते हैं। जो लोगों में सस्पिशन होता है, जिनको कोई सिम्टम होते हैं लेकिन अगर मान लीजिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, जब तक कि सिम्टम ठीक नहीं होते तब तक उनको देखते हैं और जब इनका PCR नेगेटिव आ जाता है कोविड टेस्ट, फिर इनको रेडियोथेरेपी के लिए ले सकते हैं। तो ये एक साधारण एक प्रिंसिपल है जो कि ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है, बट इन सब के भी एक्सेप्शंस होते हैं जो कि देखते हैं। अगर आप रेडिएशन थेरेपी में देखते हैं कि जो क्या करना चाहिए आज की, एक तो क्या होता है कि मरीज रोज अगर हॉस्पिटल आ रहा है, उसको एक डर होता है कि कहीं उसको भी वहाँ कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये कोशिश जो की जाती है, जैसा मैंने कहा कि हाइपोफ्रैक्शनेशन, पहले 6 से 7 8 हफ्ते रेडिएशन दिया जाता था, लेकिन अब कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमको पता है कि कम समय में भी रेडिएशन दे करके उतना ही फायदा लिया जा सकता है। जो टेक्निक यूज करते थे हम लोग पहले, बहुत एडवांस टेक्निक ना ले करके थोड़ी सी कम टेक्निक लेके, जिससे कि जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए और इसमें कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैंने कहा कि जो भी ट्रीटमेंट में बदलाव किया जाता है, इसके लिए कहीं ना कहीं स्टेब्लिश्ड जो एविडेंस होना चाहिए कि इससे कहीं मरीज को नुकसान नहीं होगा। कई जगह कंकरेंट कीमोथेरेपी दिया जाता है, जैसे कुछ एक बीमारियों में रेडिएशन के साथ में भी कीमोथेरेपी देते हैं। इसमें भी ये डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कि बेनिफिट और रिस्क दोनों देखते हैं, अगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ तो उन केसेस में कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ में अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ रेडिएशन लेते हैं। और हमें पता है कि अगर हम रेडिएशन देते हैं तो इससे कई बार इम्यूनो सप्रेशन होता है, तो वो नुकसान हो सकता है और उनको इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। पैलिएटिव रेडिएशन, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ कहीं हड्डी में है या ब्रेन में मेटास्टेसिस है, जिसको बहुत दर्द हो रहा है जिस तो उन कैंसर के कारण, तो उन केसेस में जो है रेडिएशन शॉर्ट फ्रिक्शनेशन देते हैं। आजकल पता है कि कभी 1 या 2 बार रेडिएशन देने से उतना ही फायदा होता है जो कि 5 या 10 रेडिएशन देते हैं। दूसरा एक फॉलोअप की और बात है, जो कि फॉलोअप जो है आजकल देखा गया है कि पहले मरीज को बार बार बुलाते थे, आजकल कई जगह देखा है और कुछ एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी स्टडीज की गई हैं कि अगर हम उनसे टेलीफोनिक फॉलोअप लेते हैं तो उनको बार बार आने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ एक बीमारियों में जहाँ करके प्रूव हुआ है। तो उससे भी मरीजों को आजकल हम ये देख लेते हैं कि टेलीमेडिसिन के द्वारा या फिर उनसे टेलीफोन द्वारा या वेब द्वारा उनसे पता कर लेते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। और जब ये सारी व्याधि खत्म हो जाएगी तो उस टाइम फिर हम उनको बुला करके देख सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो देखी जाती है हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम द्वारा दी जाती है, सो दैट इसमें सभी तरह के डॉक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं, चाहे रेडिएशन, कीमोथेरेपी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले, ये सभी क्या एक साथ बैठ करके निर्णय करते हैं
कि इस मरीजों को कुछ दिनों बाद देखा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी बहुत सारे अस्पताल अपने अपने इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल भी बना रहे हैं, कई जगह किस तरह से है, क्योंकि कई चीज़ें जो लिटरेचर है वो उस हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको, दैट पीपल आर सीइंग. Now, one paper I was talking about, lot of people have concern about the cancer and the coronavirus, and this paper was published from China because China had some experience and they had nearly 1500 cases that they have analyzed, और इनको analyze करने पर उनको पता लगा था कि when the coronavirus and the cancer are both together in any patient, then they have high chances of the risk of the complication as well as developing the incidence of the ICU admission. तो आप देखें जब कैंसर नहीं होता है तो उसमें आप देखेंगे कि एडमिशन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन अगर जो मरीज हैं जिनको कैंसर भी है और कोविड भी साथ में है, कोविड-19 है, तो उसमें कई बार संभावना होती है. And the reason why I'm showing this one is basically a lot of people will be asking about this कि अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या कोई फर्क पड़ता है. तो डेफिनेटली कुछ एविडेंस हमारे पास आ रहा है और आगे भी आता रहेगा इसके बारे में कि इनमें संभावना ज़्यादा होती है. इसलिए कैंसर मरीज के साथ में बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें, साथ में अपने जो भी साथ में है उनका भी ध्यान रखें कि ज़्यादा मिक्सअप ना हो. इसलिए डिस्टेंस और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कैंसर मरीज को कोशिश करना चाहिए कि कहीं भी कांटेक्ट ना हो और उन्हें ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा ना हो कि ट्रीटमेंट रोकना पड़े कोविड वायरस के कारण. तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है. So what we need to do basically when the patients are there who are suspected of the coronavirus infection, the first thing is very important that we need to educate the people. बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को एजुकेट किया जाए, चाहे वो स्टाफ हो या मरीज हो. जितने भी मरीज हैं जिनके सस्पिशन होता है उनको आना चाहिए. और कई बार हम लोगों ने देखा गया है कि अगर मरीज को कई बार थोड़ा बुखार भी रहा है या खराश रही है गले में, वो कोशिश करते हैं कि दिखाया ना जाए, ये तो बताते नहीं है और कई बार वो क्रोसिन वगैरह लेकर के आते हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफ हो सकती है कि ना उनको बट उनके साथ में जो दूसरे मरीज हैं या उनके साथ में कोई भी आया है, उनके रिश्तेदार या फिर केयर गिवर, उनको भी संभावना हो जाती है. तो ये ज़रूरी है कि हम बहुत ही क्लियर रहें, जो भी सिम्टम है बता दिए जाएं और उस हिसाब से आगे की जांच की जा सकती है और दूसरे मरीजों को और उनको खुद को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. क्योंकि अगर मरीज ने बताया नहीं और उसको कोरोना हुआ और उसका इलाज चलता रहा तो ये कई बार नुकसान हो सकता है कि अगर उनको बीमारी बढ़ गई जो कि कैंसर और कोरोना दोनों के साथ में हो सकती है तो तकलीफ हो सकती है. इसके बेहतर के पूरी तरह से बता दिया जाए जिसमें कि आगे तकलीफ ना हो और इलाज हो सकता है. सभी के लिए प्रोटेक्टिव केयर बहुत ज़रूरी है एंड ख़ासतौर पे हेल्थ वर्कर्स के हम बात करते हैं कि डॉक्टर, नर्सेज और टेक्नीशियन जितने भी जो मरीज को से कांटेक्ट में आते हैं उनका तो ठीक रहना बहुत ज़रूरी है. और पेशेंट को भी हम बताना चाहेंगे कि उनको अपने आप खुद को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड वी मस्ट सेपरेट दीज वल्नरेबल पेशेंट. जिन पेशेंट को संभावना है कि अगर उनको कहीं इन्फेक्शन हो सकता है वो दूसरे मरीजों से थोड़ा अलग करके इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि आगे दूसरे मरीजों में ना आ सके. तो ये ज़रूरी हो जाता है. अगर हम कोरोना वायरस के बारे में देखते हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानने के लिए. एंड एक बार वंदना जी कह रही थी कि ये एक स्टिग्मा है जो कि लोगों में रहता है कि हमको कैंसर का एक स्टिग्मा तो अलग से ही है, कोरोना वायरस का होता है तो कई जगह बहुत तकलीफ होती है इसके. और उसके लिए मैं मरीजों को ये कहना चाहूँगा कि कोई स्टिग्मा अपने मन में नहीं सोचना चाहिए. वन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ. उनको खुद को अपने अंदर एक ताकत इकट्ठी करना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीज़ों से ठीक हो सकता है. मरीज कोरोना वायरस के भी पता है कि करीब 3% लोगों में ही ज़्यादा नुकसान होता है, बाकी 97% ठीक हो जाते हैं. तो हम भी ठीक हो जाएंगे इसके अंदर. कैंसर के बारे में ही पता है आज की स्थिति में ज़्यादातर कैंसर का इलाज है और काफ़ी कुछ ठीक हो जाते हैं. तो मरीजों को खुद को एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, साथ में उनके परिवार वालों को, साथ में परिवार के साथ में जितने को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए. जितना कि हम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे उतने ही अच्छे होने की संभावना रहती है.
जितने भी मरीज हैं खासतौर पे जो कैंसर वाले, उनको पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लेना चाहिए, डाइट बहुत अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से लड़ने के लिए हमारे अंदर इतनी शक्ति होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टिग्मा को कायदे से भूल जाना चाहिए, और अपने आप को स्ट्रांग रहेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में ही जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि अगर मान लीजिए संभावना रहती है, कोशिश करना चाहिए जितना कम से कम किसी के ज़्यादा कांटेक्ट में आए। अभी कुछ समय तक तो ये हमारे यहाँ संभावना रहने वाली है कि लोगों में तकलीफ होगी। हमको पता नहीं कौन कोरोना से ग्रसित है और कौन नहीं है, और कई बार ठीक दिखने वाले लोगों में भी कोरोना हो सकता है। और ख़ासतौर पर कैंसर मरीजों को जितनी संभव हो सकते हैं उतने टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की तारीख में करीब करीब सभी अस्पतालों ने टेली कंसल्टेशन का शुरू किया हुआ है। किसी मरीज को कुछ पूछना है तो डॉक्टर से उस संस्था के द्वारा, चाहे वो कैसा भी अस्पताल हो, नहीं तो डॉक्टर से भी वीडियो कंसल्टेशन और टेली कंसल्टेशन शुरू करना चाहिए। जब भी आवश्यक हो तो हॉस्पिटल में जा करके दिखाने की ज़रूरत है। टेली हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। और आजकल ये भी हो गया है कि छोटी छोटी दवाइयाँ लेने के लिए आपको जरूरी नहीं कि बाहर निकलना पड़े। आजकल बहुत सारी संस्था आ गई जिसमें कि टेली फार्मेसी, आप बताइए कि ये दवाइयाँ चाहिए, वो आपके घर पर पहुंचा दी जाती है। तो खासतौर पे हम जब देखते हैं कि हमारे मरीजों के साथ में जो कैंसर के मरीज जो रेडियोथेरेपी ले रहे हैं खासतौर पर, और कोविड का डर है या फिर कोविड से अभी उनको नहीं भी हुआ, अगर इस तरह का एहतियात लेंगे तो काफ़ी कुछ काम हो सकता है। कम से कम बाहर से कांटेक्ट किया जाए। जहाँ कहीं डिले ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाती है, जैसे मान लीजिए कुछ एक अस्पताल में बहुत भीड़ हुआ करती थी पहले, अभी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि सभी लोगों को इसमें योगदान देना है कि जितना कम से कम कांटेक्ट में हो। तो कई बार मरीजों को हार्मोन थेरेपी कंटिन्यू करने को कहते हैं कि आप 1-2 बार और लीजिएगा हार्मोन, इससे नुकसान नहीं है, बट दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड। इस कीमो का कोर्स कंप्लीट हो गया है जिनका, और रेडियोथेरेपी के लिए ड्यू है। कई बार ये होता है कि जो कि कुछ एक स्टडीज होती है जिसमें कहा गया है कि 3 कोर्स के बाद रेडियोथेरेपी लो। कई जगह कहा गया है कि 4 कोर्स के बाद रेडियोथेरेपी देने से उतना ही नुकसान नहीं होता है, और थोड़ा सा फायदा या नुकसान देखा जा सकता है इसके अंदर। तो ऐसे मरीजों में जो है, अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि भैया एक कोर्स और ले सकते हैं, हार्मोन और ले सकते हैं, तो इन केसेस में उनको डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर हर चीज़ के लिए एविडेंस के साथ में बात करते हैं। और ये बिल्कुल तय है कि जहाँ जहाँ एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, जहाँ नुकसान हो सकता है मरीजों को अगर रेडियोथेरेपी ना दी जाए, जैसे कि पेशेंट का हेड कैंसर है, उनका ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद में रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है, तो उनको हमेशा लिया जाता है, लेकिन सारी प्रिकॉशन के बाद। जिन्होंने कीमो कंप्लीट किया है, या जो मैंने कहा पैलिएटिव, हड्डी में दर्द हो रहा है ऐसी जगह पे, बस इनमें यह है कि कोशिश ही की जाती है कि कितने जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सकते हो। द ऑल्टर फ्रैक्शनेशन जो हमने बात किया था कि यू कैन हैव दी फ्रैक्शनेशन विच इज़ अ शॉर्ट फ्रैक्शनेशन, हाइपर फ्रैक्शन यानी कम दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े एरिया में पहले देते हैं, फिर छोटे एरिया में कम देते हैं रेडिएशन, तो ऐसे में साथ में भी दिया जा सकता है। तो ये भी आजकल किया जा रहा है, और इसके बारे में मरीज को समझा सकते हैं। और अगर पेशेंट को भी लगता है, उनको जो भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। बात अभी ये भी चली थी कि बहुत सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं हमारे यहाँ, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कई जगह थोड़ा बढ़ने वाला भी है, कई जगह जो है मरीजों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसा भी कहा गया है कि देयर आर सोसाइटीज इन द रेसिडेंट दे आर आल्सो रिस्ट्रिक्टिंग के लोग ना जाए। बट ये आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कई बार डॉक्टर भी आते हैं तो उनको भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अगर 10-15 दिन हॉस्पिटल में जहाँ कोविड के पेशेंट हैं कर चुके हैं, तो लोगों को डर रहता है इसमें। बट ये हमको सोसाइटी को समझाना पड़ेगा, सारे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि जो आ रहे हैं अगर वो पूरी तरह से सारे प्रोटेक्टिव डिवाइस और जो प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, संभावना बहुत कम होती है। आजकल बहुत सारे अस्पताल ऐसे भी हैं जहाँ पर कि क्या बोलते हैं कि कोविड टेस्ट पहले करवाते हैं और फिर ही उनको अस्पताल में लेते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कोविड टेस्ट कुछ एक अस्पताल मेरे को जानकारी में आए हैं कि जिन्होंने कहा गया है कि वो जो हर हफ्ते भी कोविड टेस्ट करवाते हैं। बट कई बार लगता है कि अगर इन जो मरीज हैं अपने तरह से रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन लेते हैं कि लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं,
तो संभावना है कि इसकी संभावना कम हो जाती है। अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है, अगर वो किसी और से कांटेक्ट में नहीं आते, अपने घर में जाकर के सिर्फ अपने ही कमरे में रहते हैं, तो ये संभावना कम होती है। बट ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगी जब लोगों का ठीक होना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में चूँकि चाहे आप मीडिया को देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर को देख लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ आ रही है कि हर आदमी को डर लग रहा है। बट इसके लिए हम सबको ज़रूरी है, एंड स्पेशली हम कहना चाहें कि सोशल वर्कर को, ये सब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपने प्रिकॉशन ले सकें तो प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम कोविड से इतना डरा जाए। इस तरह के, जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक पहले भी आ चुके हैं, पहले भी इससे भी ज़्यादा भयानक रहे हैं। ये तो एक तरह से देखा जाए इतना ख़राब नहीं है, बट हम सबको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि कहीं फैले नहीं, किसी और के पास न जाए। इसलिए आई वुड लाइक टू फिनिश समवेयर हियर, स्पेशली व्हेन वी आर लुकिंग, जो भी rumors and other things are there, one should not really go for that. But a lot of problems have been created with a lot of rumors which has come up, which we are seeing in the daily news. So just follow the instruction from the government organization which are of repute. One should follow these instruction, what needs to be done. And therefore it is important that for all patients, for all caregivers, all of us, we should protect ourselves, our family, and all the caregivers which are important. So when we look at the radiation therapy, there are not too many changes, but radiation therapy is given for those who are definitely require immediate radiation. It may be slightly postponed, the things because certain things are available, like if you are taking a hormone therapy, maybe just one injection or tablets for some period of time, especially when we are talking of breast cancer or the prostate cancer or the rectal cancer, taking capsules or the tablets or injection can really delay the radiation therapy that is generally taken by the radiation oncologists on a certain evidence which is already available. So मेरे ख्याल में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और जितना भी संभव हो सके आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर से पहले बात कर लें, और डरे नहीं, बट बी सेफ, और अपने आप को सेफ रखें, बाकी आपके साथ में जितने लोग हैं वो भी सेफ रहें, वही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वंदना जी। थैंक यू डॉक्टर श्रीवास्तव। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। इफ यू वुड लाइक टू रिमूव द स्क्रीन शेयर तो आपकी शक्ल भी ज्यादा अच्छे से दिख जाएगी। ओके, या राइट। ओके, सो एक दो चीजें मैं पूछना चाहती हूँ बिफोर वी ओपन इट फॉर अदर्स। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने बताया कि कोविड टेस्टिंग करवाते हैं, पहली बार कराते हैं जाने से पहले, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि शायद हर हफ्ते में भी उनको कोविड टेस्टिंग करानी पड़ती है रेडिएशन से पहले। तो मतलब एक बार अगर कोविड की टेस्टिंग कराई तो वो कितने दिन तक वैलिड होती है? क्यों हर हफ्ते करानी पड़ती है? बिकॉज इट एड्स टू द कॉस्ट। या आई 100% एग्री विद दैट। एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए कोविड टेस्ट एक बार किया गया है और उसके बाद में अगर किसी भी पेशेंट ने पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं, जैसे कि जहाँ भी जाते हैं दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ एनीवन एल्स, और उनको कोई सिम्टम भी डेवलप नहीं होते हैं, जो कि कम से कम देख लीजिए आप 6 से 8 या 10 दिन के बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट का आज किया, और एक एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है और उसको रेडिएशन थेरेपी लगना है, तो आज पहली बार अगर किया गया है और उसके बाद में उसको कोई सिम्टम नहीं होते हैं 6 से 10 दिन के बीच में, तो बहुत अनलाइकली है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं कि मास्क भी पहन रहे हैं, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट टचिंग द सर्फेसेस एवरीवेयर, जितना दूर रह सकते हैं, घर में जाकर के दे आर कीपिंग ऑल द हाइजीनिक थिंग, दे आर नॉट ईटिंग एनीवेयर एल्स, तो संभावना कम हो जाती है। लेकिन आज का डर ये लग रहा है लोगों को, जो कि मैंने कई लोगों से बात किया है, कि
पेशेंट के बारे में बहुत श्योर नहीं कहा जा सकता है कि बिकॉज फ्रॉम देयर इफ दे आर गोइंग बाय टैक्सी, तो टैक्सी में क्या होगा, मान लीजिए अगर इन्होंने कोई टैक्सी की हुई है हॉस्पिटल से घर तक जाने पे, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये इंस्टेंस भी आए हुए हैं कि ड्राइवर को था और ड्राइवर से पैसेंजर्स को लग गया, या उनकी कार में लग गया, या उनकी टैक्सी में लग गया। घर जाते वक्त अगर वो सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी से आया, तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन इनमें भी आजकल गाइडलाइंस आ रही हैं कि हाउ टू रियली फॉलो दिस। आप देखें तो सरकार ने अभी कहा दिया है कि टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं और उनको हर मरीज के बाद सैनिटाइजेशन करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में कराने की जरूरत नहीं है जैसा मैं समझता हूँ। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। एक बार अगर वो पेशेंट होता है, एक्सेप्ट दो पेशेंट जो कि हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं जिनको रेडिएशन लग रहा होता है, उनमें ऑब्वियसली जब दूसरे तीसरे हफ्ते में ज़्यादातर थोड़ा सा कफ आता है, कभी कभी थोड़ा फीवरिश होता है, तो हम क्लिनिकली देखते हैं कि कोई डर है क्या। और अगर उनने कांटेक्ट नहीं किया है, कुछ नहीं है, तो सारे मशीन्स में जो है सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, हाइजीन प्रॉपर रखी जा रही है, तो फिर नहीं कराते हैं। लेकिन जहाँ कहीं वो सस्पिशन होता है तो फिर हम पेशेंट को फ्लू क्लिनिक में भेज देते हैं, जहाँ पर कि वो देख लेते हैं। अगर उनको सस्पिशन होता है तो दोबारा कराते हैं। तो एज ए पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं लगता है कि हर हफ्ते कराना चाहिए अनलेस दे आर सस्पिशियस। तो जैसे मशीन्स आप बता रहे थे कि जो सैनिटाइज करते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि सेम मशीन पे कोविड पेशेंट भी जाते हैं और उसी पे नॉर्मल भी जाएंगे। हाँ, जिन अस्पतालों में 4-5 मशीन है, अभी जैसे टाटा में है, तो टाटा में तो 10 मशीन है, टाटा परेल में ही। तो उसमें एक मशीन को ईयर मार्क कर देंगे कि भैया अगर कोई कोविड पेशेंट को देना ही है तो इस मशीन पे आएगा। तो उसके लिए अलग से एक कॉरिडोर है। आप अगर याद रखें तो पीछे से एक एंट्रेंस है, जो कि जहाँ कारें रखते हैं वहां से पीछे से आकर के सीधे, सो दे आर नॉट इन, और जनरल पब्लिक उस कॉरिडोर से जाएगी भी नहीं, एक सेपरेट कॉरिडोर हो गया, और वो मशीन पे सीधे आएंगे और वहाँ ट्रीटमेंट लेकर के वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसे कई बहुत सारे अस्पताल जहाँ सिर्फ एक ही मशीन है, तो उसमें क्या करते हैं कि पहला तो ये कोशिश करते हैं कि अगर ये कोविड पेशेंट है, इसको कोरोना वायरस है, किसी और को ना लगे, इसलिए क्या हम इसका डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट हार्मोन से या किसी और चीज़ों से। अगर नहीं तो इस मरीज को हमेशा लास्ट में लिया जाता है। जैसे शुरू के सारे हो गए शाम को 5:30 बजे, तो वो मरीज को लेकर के पहले उसको क्लीन किया और मरीज को लेने के पहले सैनिटाइज किया, मरीज को ट्रीट किया, उसके बाद पूरा कॉरिडोर जहाँ से बाहर गया पूरा सैनिटाइज करते हैं। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, और कई हॉस्पिटल में, खाली यहाँ नहीं, यूरोप में भी है और इवन चाइना जापान में भी इस तरह की प्रोसेस की गई कि उनकी एंट्रेंस अलग है, मशीन अलग है, और जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स और टेक्नीशियन वो भी अलग रहते हैं। वो दे विल बी देयर फॉर से अराउंड 1 वीक और 10 डेज। उसके बाद में उनको 10-15 दिन की छुट्टी देते हैं, फिर वो रोटेशन में चलते रहते हैं। आप बता रहे थे कि आप लोग रेडिएशन की मतलब ड्यूरेशन या तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर कमिंग कम कर रहे हैं, तो वो पेशेंट को ये बात समझती है कि ये इसलिए अभी कम किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से या जो भी है, ये वो सोचेंगे कि उनके ट्रीटमेंट में कुछ अफेक्ट होगा उससे? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये हम लोगों ने जितने भी मरीज में किया हुआ है, करीब हर मरीज ने यह प्रश्न किया है कि कहीं आपने कम कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि इससे तो कुछ नुकसान होगा। तो ये एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। आई थिंक सबके दिमाग में आएगा। अगर मैं भी मरीज हूँ तो मैं भी यही पूछूंगा कि भाई आप इतना ट्रीटमेंट कम कर रहे हैं, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में जितने भी है, कहीं ना कहीं एविडेंस जरूर है उसका। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है वो जो कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कई चीज़ें जो रिसर्च के बाद अभी आ रही हैं कि भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैंसर ब्रेस्ट में पहले सर्जरी करने के बाद जब रेडिएशन देते थे, आपको याद होगा कि बहुत पहले व्हेन डॉक्टर दिनशा वाज आल्सो देयर, वी ऑलवेज यूज्ड टू गिव 5 वीक्स ऑफ रेडिएशन। लेकिन आज की तारीख में वो 3 वीक में हो जाता है, 3 या एट द मोस्ट 4 वीक्स में हो जाता है। तो जो 5-6 हफ्ते लगते थे वो 3-4 हफ्ते में, और रिजल्ट्स आर सेम। और इट हैज कम विद अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस विद रिसर्च और लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। सिमिलरली फॉर प्रोस्टेट कैंसर में, जिनके बारे में अभी चूंकि पिछले 20-25 साल में रेडियोबायोलॉजिकली काफ़ी कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है कि पेशेंट्स को कम ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अभी तो ये भी हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर में कि पहले जो 6, 7 और 8 हफ्ते लगते थे रेडिएशन का, अभी 4-5 हफ्ते में हो जाता है।
कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या 1 हफ्ते में भी होगा, और इसकी भी स्टडीज चल रही हैं और काफ़ी कुछ मरीज इसके में आ चुके हैं। हो सकता है अगले 4-5 साल में ये भी हो जाए कि प्रोस्टेट कैंसर हम सिर्फ 4 दिन में या 5 दिन में ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मरीज को समझाना जरूरी होता है, और इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं होता है। ये हम पहले उनको बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसका एविडेंस है, और इसमें मरीज को किसी भी तरह का मरीज के इलाज में नुकसान नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा नहीं होंगे। इस तरह से वो प्लानिंग करते हैं। और आप जानते हैं कि जो मशीन हमारे पास 20-25 साल पहले थी और आज है, उनमें बहुत अंतर है, सोफिस्टिकेटेड मशीन बहुत है। अब एक प्रश्न है कि मान लीजिए मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ और अभी तक मैं टाटा मतलब रहती मैं नवी मुंबई में हूँ, हाँ। और मैं जाती थी टाटा हॉस्पिटल अपना रेडिएशन कराने, लेकिन जी। मतलब अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब मुझे बताया गया है कि मुझे रेडिएशन करना है, लेकिन हाँ लॉकडाउन की वजह से मैं नवी मुंबई नहीं से बॉम्बे नहीं जा सकती हूँ। हाँ हाँ। क्या वो रेडिएशन का प्रोसेस अपोलो में हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी कॉस्ट वगैरह में क्या फर्क होगा, या कैसे करना होगा? हाँ, इनका ट्रीटमेंट तो क्योंकि ये तो मजबूरी है हर मरीज के साथ में कि इतना दूर ट्रैवल करना मुश्किल है और रोज जाना भी मुश्किल है, क्योंकि कई चीज़ों की कई प्रॉब्लम्स है इसमें। तो आई फुली एग्री विथ यू कि अगर मरीज नवी मुंबई में है, उसके आसपास में जो भी अस्पताल अवेलेबल है उसमें लेना चाहिए। तो इसमें जो है अपोलो ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कुछ इसके बारे में पहले से सोच हुआ है कि अगर मरीज वहाँ नहीं जा सकता है तो यहाँ कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ हद तक जो टाटा हॉस्पिटल के रेट्स हैं, जैसे टाटा हॉस्पिटल में प्राइवेट पेशेंट होता है, वो जो पैसा वहाँ कर ट्रीटमेंट के लिए देता है, करीब करीब उतना ही पैसा अपोलो हॉस्पिटल में वही इलाज किया जा सकता है उसमें। तो वो दिक्कत नहीं होती है, वो आ जाए। और जैसे टाटा हॉस्पिटल के रेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़े से टाटा हॉस्पिटल के रेट ही के नाम से ही वो दिया जाता है। बस उसमें हम लोग ये थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि अगर वो टाटा हॉस्पिटल से रिफर्ड है तो अच्छा है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर वो परेल गया और परेल में कहा है कि अब नहीं दे सकते या टाइम लगेगा, तो वहां से वो लेटर लेकर के आ जाए, तो उनके पास ऑथेंटिकेटेड लेटर होता है कि ये टाटा हॉस्पिटल से आए हैं, तो इनको इस तरह से टाटा हॉस्पिटल के रेट में ही इलाज करना चाहिए। नहीं, ये तो नॉर्मल सिचुएशन होगी ना। अब जैसे मैं जा ही नहीं सकती हूँ कुछ हाँ रेफरेंस लाने के लिए या कोई भी चीज है, पर हाँ मेरे हाँ फाइल में पहले से लिखा हुआ था कि मेरा हाँ, रेडिएशन होना है और वो डेट आ गई है, कर तब। सकते हैं, वो भी कर हाँ सकते हैं। टाटा हॉस्पिटल की फाइल हो हाँ तो उसमें कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं कि आप अगर वहाँ से रेफरल लेटर हो तो दैन इट इज़ ईजियर। और मैं बताता हूँ क्यों कारण मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कि आजकल तो लेटर लेकर के वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ईमेल पे भी भेज सकते हैं कि भाई ये लेटर दी। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस वन कि टाटा हॉस्पिटल इज एन वेरी एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव वर्क देयर। तो वहाँ जो पेशेंट का फॉलोअप के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। द रीजन इज दैट कि जो अभी भी जो चाहे कोई रिसर्च स्टडी देख लीजिए या कुछ है, वो टाटा हॉस्पिटल में ही सबसे ज्यादा होती है। तो वहाँ फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर वहाँ से अगर लेटर है तो हमको पता है कि इसको वापस फॉलोअप के लिए वहाँ भेजना है, एंड दिस पेशेंट विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर द रिसर्च और मे बी द डेटा एनालिसिस which basically for the future patients it is helpful. So अगर नहीं हो पाता है they can come, and it is easier for all of us to talk to the consultant there, and things can be organized. It's not a problem. कुछ पेशेंट्स ने ऐसे कहा है कि जैसे वो कीमोथेरेपी करवा के गए थे और कुछ दिन का गैप था, और हाँ उसके बाद उन्हें वापस आना था, और तब डॉक्टर ने कहा था कि उनका रेडिएशन होना चाहिए उसके बाद। हाँ हाँ लेकिन हाँ अब वो गांव में फंस गए हैं और कीमोथेरेपी करवा चुके हैं और रेडिएशन शुरू नहीं हो पा रहा है, तो नेचुरली एंजाइटी बिल्डअप हो रही है कि क्या करना चाहिए। तो और सब लोग तो बड़े शहरों में नहीं है जहाँ पे रेडिएशन की मशीन होंगी या नहीं होंगी, तो हाँ हाँ। उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या रेडिएशन की जगह कोई और दवाई दी जा सकती है, या उनको डिले किया जा सकता है, या आसपास में आप सेंटर्स की अगर कोई फोन करे तो लिस्ट दे सकते हैं? हाँ हाँ। आपके प्रश्न में 3-4 प्रश्न है एक साथ। एक तो जैसा ही कहा कि पहला मान लीजिए उसने कीमोथेरेपी कंप्लीट करके और 4 वीक्स का गैप था, उसके बाद रेडिएशन लेना था उसको, हाँ और करीब 3-3.5 हफ्ते हो चुके हैं, हाँ और अब उसको आना है रेडिएशन के लिए, बट वो गांव में फंसा नहीं आ सकता है उसके लिए। हाँ
उसके लिए 2-3 चीजें। एक तो क्या है कि जिस भी डॉक्टर ने उनको कीमोथेरेपी दिया या जो प्रोटोकॉल, जैसे हमने कहा था आपसे कि मल्टी डिसिप्लिन टीम है ना, तो जैसे जॉइंट क्लिनिक होती है वहाँ डिसीजन होता है कि क्या है। तो पहले उसको जो एमडीटी है, जो भी फिजिशियन है या सर्जन है या उनसे बात कर लेना चाहिए कि मेरे इस तारीख को रेडिएशन की डेट है, तो दे कैन गो थ्रू द पेपर। और अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है कि मान लीजिए उसको एक साइकिल कीमोथेरेपी और दी जा सकती है बिना किसी नुकसान के, उससे फायदा भी होगा एक तरह से कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके समझ लीजिए कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद रेडिएशन दिया जा सकता है, तो वो वहीं से एडवाइस कर देंगे यस आप ले सकते हैं, ये कीमोथेरेपी है। और अपने आसपास के जो भी शहर है या वहाँ भी कुछ मिलता है तो कीमोथेरेपी ले सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात है कि मान लीजिए और कुछ नहीं है, वो रेडिएशन बहुत जरूरी है वहाँ पर, उसके अलावा कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, और बिना रेडिएशन के ये संभावना है कि वो आगे तकलीफ हो जाए, बीमारी बढ़ जाए और फिर रेडिएशन का इतना असर ना हो। ऐसी स्थिति में 2 चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो ये है कि जो भी डॉक्टर हैं, खासतौर पे अगर जब मान लीजिए टाटा में, तो एक पूरी लिस्ट होती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन रेडिएशन सेंटर है उसके आसपास, तो वो रेडिएशन सेंटर के बारे में बताई जा सकती है। और किसी से पूछो तो करीब करीब सभी को पता होता है कि उस गांव या उस शहर के बाजू में कौन सा सेंटर है जहां रेडिएशन देता है। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए उसको बॉम्बे ही आना है, विच इज क्लोजर टू बॉम्बे, ऐसी स्थिति में यहाँ का एक दे कैन आस्क फॉर ए लेटर कि भैया हमको रेडिएशन देना है, और उसके पास भी रहेगा, और वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उनसे जाकर के वो एक लेटर ले सकते हैं। एंड इट हैज हैपेंड विद सम ऑफ द पेशेंट इवन रिसेंटली, कि एक कोई औरंगाबाद से पेशेंट है, कोई सांगली का पेशेंट है, उन्होंने वहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर के बात की कि मेरे को रेडिएशन लेना बहुत ज़रूरी है या सर्जरी करना ज़रूरी है, तो वहाँ से उनको वो लेटर दिया जाता है कि दे आर परमिटेड टू ट्रैवल। तो जनरली अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आ सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, वो रेडिएशन ले सकते हैं, चाहे वो अपोलो में हो या टाटा में हो, जिस जगह भी जो उनके पास क्लोज है। अगर क्योंकि मुझे याद है कि अभी पिछले करीब 2 हफ्ते में कम से कम 3 या 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जो कि बाहर से उनको रेडिएशन लेना था। एक पूना से आए थे अभी, तो अभी भी ले रहे हैं रेडिएशन, तो उनको एक लेटर दे देते हैं और वो वहाँ पुलिस विभाग को बताते हैं, वो उनको जाने की परमिशन दे देती है और गाड़ी आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं यहाँ पर। हाँ डॉक्टर श्रीवास्तव, जो लोग रोज जैसे पूना से हैं, हो सकता है वो रोज आना जाना भी कर पाते हो, लेकिन जो दूर से है परमिशन मिल जाएगी और वो आ भी जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर रहने की समस्या, क्योंकि कोई भी धर्मशाला या कोई भी रहने की जगह या होटल आजकल कोई भी बाहर से आए हुए को नहीं रख रहे। ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। पहले टाटा मेमोरियल के थ्रू कुछ हो रहा था रहने का इंतजाम, लेकिन शायद अब वो भी नहीं संभव है, क्योंकि जो डोनर है उन्होंने कहा है कि शायद अब वो ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकते उसके लिए, तो एक समस्या हो गई है। मतलब मेरे पास किसी का फोन आया था कि 2 रात से वो गाड़ी में ही सो रहे हैं क्योंकि उनको धर्मशाला में या कहीं रहने की जगह नहीं मिली है। तो प्रॉब्लम तो हर तरह की है। शायद कुछ धीरे धीरे सॉल्व होंगी, कुछ रहेंगी, कुछ आदमियों को क्या कैसे कैसे कह सकते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, समस्या तो है ही ना। बिल्कुल सही आपका कहना है, ये बड़ी ही जेन्युइन समस्या है जिसको कहा जाता है कि कई जगह जो है, आई मीन ये तो एग्जांपल में डॉक्टरों के साथ भी हुआ है कि वो 14-15 दिन की ड्यूटी के बाद जब घर आए तो उनको नहीं आने दिया उनकी बिल्डिंग वालों ने। तो ये मरीज के साथ तो और भी ज्यादा है, बेचारे कहीं बाहर से आ रहे हैं और जो है वो सोसाइटी उनको अंदर नहीं आने दे, क्योंकि सोसाइटी में भी एक डर तो है। मेरे ख्याल में इसके लिए हम सबको कलेक्टिवली एक एफर्ट करना पड़ेगा। वील हैव टू टेल द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, and I think maybe even the police and some organization, some building, we have to really find out, all of us have to try for this, क्योंकि जो कुछ और नहीं कर सकते हैं but they can take care of themselves well, कि वही कहीं कांटेक्ट में आएंगे, कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई जरूर होना चाहिए। बट आई नो दिस इज स्टिग्मा, इट इज द प्रॉब्लम, lot of people would not like to really take the रिस्क इन दैट वे। तो वो प्रॉब्लम हो रही है कि कॉलोनी में भी रिस्क नहीं लेते हैं आजकल, तो हर कॉलोनी के गेट पे ताला लगा हुआ था, आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को एक लेटर टाइप का दे दें कि ही इज सेफ टू स्टे या समथिंग लाइक दैट,
ताकि कहीं पे भी रहने के लिए उन्हें वो सुविधा हो जाए। मतलब यू कैन ओनली, इट्स अ रिस्क आई नो कि आप लोग भी शायद ना चाहें वो देना, क्योंकि लाइक यू सेड कि टैक्सी में जा रहा है, हाँ टैक्सी हाँ वाला है, गाड़ी में है, हर तरह का कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन राइट। एक थोड़ा सा लेटर रहेगा तो शायद सुविधा बढ़ जाएगी, पता नहीं। नहीं बिल्कुल, आई फुली एग्री एंड वी डू इट। हम लोग किसी किसी को करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने एक फॉर्मेट लिया हुआ है जिसमें एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है पेशेंट, नॉट एंड बट एक पेशेंट के साथ में कहते हैं कि वो किसी से कांटेक्ट ना करें, किसी ऐसे ट्रैवल ना करें जो कि अननोन हो, अपनी खुद की गाड़ी में, घर में भी जाकर के किसी और से तो उनके कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं और पेशेंट कहता है कि हाँ आई विल फॉलो इट। एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं, एक उनको दे देते हैं और साथ में एक लेटर दे देते हैं कि ही इज सेफ, ही इज फ्री ऑफ डिजीज, ही इज हैविंग कैंसर एंड ही हैज टू कम फॉर रेडिएशन एवरी डे। तो कुछ एक लोगों ने मदद की है उनकी, बट आई डू एग्री दैट इट इज नॉट एन यूनिवर्सल फिनोमेना कि हर कोई मदद करेगा, कहीं दिक्कत होती है। और एक और क्वेश्चन है डॉक्टर श्रीवास्तव की, साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन होते ही हैं जो भी होते हैं, पर हाँ मान जी। लीजिए किसी को कोविड भी हो जाए उस समय पे, रेडिएशन तो आप बंद कर देंगे, पर विल दे एग्रीवेट द साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स और कोविड के इफेक्ट्स मिलकर ज्यादा कुछ हो जाएगा या मैनेजेबल होते हैं नॉर्मल उसमें? अभी देखिए, अभी जो हिंदुस्तान का भी कोई डेटा तो आया नहीं है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ऐसे कोविड पेशेंट को ट्रीट किए ही नहीं गए हैं, एक्सेप्ट फॉर सम इमरजेंसी, बाकी तो नहीं किए। लेकिन जो डेटा आ रहा है वो चाइना से जरूर आया है, और मैंने एक पेपर आपको बताया भी था इसके अंदर। हाँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जिनको कि कैंसर भी है और कोविड भी साथ में है, हाँ, उनके रिएक्शन थोड़े से परसेंटेज वाइज थोड़े ज़्यादा हैं, और उनमें जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि वो आईसीयू में भर्ती होने की जो चांसेस है वो भी ज़्यादा है उसके कंपेरिजन में। तो डेटा जरूर है, लेकिन वो डेटा करीब 1,500 पेशेंट्स का है। एक और डेटा है जो करीब 10,000 पेशेंट्स का अभी इकट्ठा हो रहा है, उसके अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, बट इट इज शोइंग कि शायद जब कोविड भी होता है और कैंसर भी है तो थोड़ी संभावना ज़्यादा है रिएक्शन की, रेडिएशन रिएक्शन हो या फिर सर्जरी के जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें। बट अभी पूरे 100% नहीं कहा जा सकता कि वाकई ये होता है या इट इज जस्ट एन इनिशियल फिनोमेना। एक ये क्वेश्चन चैट पर आया है, उसके बाद मैं खोलूंगी। इसमें लिखा है, विद कोविड-19 केसेस ऑन द राइज, व्हाट शुड अ कोरोना सस्पिशन पेशेंट डू? व्हाट आर द स्टेप्स? हु टू कांटेक्ट फर्स्ट? वेयर कैन वी फाइंड अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट लैब्स एंड गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर्स एंड लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन मुंबई टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग कोविड केसेस? Yeah, I think there are a lot of places nowadays, even in the WhatsApp, lots of the messages are coming. One is that if somebody has got a suspicion, means they have got the symptoms either with the sore throat or the fever or the respiratory problem or maybe the diarrhea, they can contact if they are staying in a building or in a colony. So generally the chairperson and the secretary of the building will always have these instructions what needs to be done. So they will have a contact number, contact person, and from the municipal corporation they can have the contact. If there is a contact person, they generally phone up, which I came to know, which from the municipal corporation, the doctors had been assigned, they will phone up the people who are elderly. And so they phone up and do have any symptom, are you coming out, like that. So there are phone numbers are also available, but आप चाहे वो WhatsApp पे देखो, नहीं तो आपकी बिल्डिंग के सेक्रेटरी और द प्रेसिडेंट से ले सकते हैं वो नंबर. एंड सेकेंडली, nearby police station will always have these numbers where to contact. So if they have the phone number of police station, they can really directly contact, and the medical person or the people who are taking care of the corona virus, they will come and they will test it, they will take you and they will do the testing. Now for the testing lab, for each city, whether it is Bombay or New Bombay, there are certain areas or certain hospital which has been designated, certain labs have been designated. तो उनके नाम तो आते ही रहते हैं, आप उनके पता कर सकते हैं. जैसे कि अभी जैसे मेट्रोपोलिस है, SRL लैब है, इनको आप डायरेक्टली फ़ोन करके इनको बोल सकते हैं. पहले कुछ समय तक इनके लोग आकर के सैंपल कलेक्ट करते थे, बट दैट रूल इज कीप ऑन चेंजिंग, सो दैट यू हैव टू रियली फाइंड आउट
at that moment of time what are the government rules in that. But I think municipal corporation and the police are the best people. अच्छा। अभी यहाँ पे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ उठा दीजिए, तो फिर उनको अनम्यूट कर देंगे। और सिमिलरली फेसबुक पे अगर कोई जना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो चैट में डाल दे, तो वहां से हम लोग डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे। Anybody has any question to ask, please feel free. मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है डॉक्टर श्रीवास्तव, इसलिए काफी और मोटा मोटी सभी चीजें तो मालूम पड़ी गई है। डाइट पे कुछ एक दो पॉइंट कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैंने बीच में एक स्लाइड में थोड़ा लिया था कि हर पेशेंट को जो है ना एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लेना चाहिए, which is important. When the cancer patients are there, we always say, depending on the type of cancer, अगर मान लीजिए कोई head and neck cancer or they are not able to take or drink or something, we always put a nasogastric tube and give them the diet in that. लेकिन बाकी जिनमें जो भी खा सकते हैं, they should do the normal, whichever the seasonal fruits and seasonal food is available, that they should take it. But it is important they should take the food with a good amount of proteins and the carbohydrate and the healthy food, preferably if it is the homemade food. One last comment, will it be big C as cancer or will it be big C as COVID? I think COVID will last for a short time. I don't think that it is going to last for a very long time. ये मुझे लग रहा है जैसे कि पहले भी पेंडेमिक हमने देखे हुए हैं, it will go within 3-4 months or 5 months unless there is some other problem. बट जैसे कि आपने देखा स्वाइन फ्लू रहा था, पहले बहुत डर लगा था, इतने दिन रहा, उसके बाद भूल गए, किसी ने अरे स्वाइन फ्लू टेमी फ्लू ले लूं। तो ऐसा ही इसका भी होने वाला है कि इट विल नॉट बी लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई थिंक द फियर विल बी देयर फॉर एटलीस्ट अ ईयर और so we have to be really careful for a year, and then the cancer will remain the big C. Big C, yes. एक ने पूछा है, is there any probability for a recovered patient to have COVID again? Yes, there's always COVID always there, because this is we are seeing nowadays. चाइना में बीच में कहा गया था कि सारा COVID-19 खत्म हो गया है, but the people have started coming up again. कोविड के साथ में प्रॉब्लम एक जो है, जो मेरे ख्याल है सभी ने पढ़ा होगा, कि अगर इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है तो इसकी वैक्सीन निकालना आसान है, क्योंकि नथिंग इज चेंजिंग, जैसे पोलियो का है ना। लेकिन कोविड के साथ में एक के से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है तो ये अपना थोड़ा सा चेंज कर लेता है स्ट्रक्चर, तो अपना स्वरूप चेंज कर लेता है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि ये वही कोविड है, इसलिए वैक्सीन भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। So यही सेम प्रॉब्लम होती है कि once you have got a COVID infection, you develop the antibodies for that, but when it comes back after some period of time, तो वो अलग रूप में रहता है, तो उसकी एंटीबॉडीज बनाने के लिए फिर टाइम अलग लगता है। So there are possibility that somebody can get the infection again if it is a slightly different form of COVID or coronavirus. Thank you, Dr. Srivastav. I think काफी समय आपका ले लिया. Thank you. Thank you very much, and I think all of us have gained a lot. फिर भी if there is anybody who has any question later, please feel free to share with me, and I can ask doctor to explain it to us once again. Thank you very much, and I think एक बार unmute कर दो सबको, so that everybody can at least appreciate and clap for Dr. Srivastav. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you so much. Thank you so much for your time and so many explanations. Great. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I enjoyed it. Thank you. Thank you, Thank you, doctor. Dr. Srivastav.